Hello, welcome guys. Welcome to the Academy. Let's crack all 8 CBC exam with us. We have top educators and quality contestants. You may feel great learning experience over there. So let's crack CBC 8. So this is about me. My name is Mohit Pandey and I have done MTech in computer science and BTech in information technology, and PhD is ongoing. I am GATE qualified in computer science subject, and I am also UGC NET qualified in computer science and having more than 7 years of teaching experience. Various research articles and book chapters are written by me. So I am Mohit Pandey, right? So for cracking CBSE, for cracking CBSE Class 8 with India's largest learning platform, you need to get subscribed first. So do it now, and the benefits are you may join the daily live classes, live test quizzes, unlimited access from anywhere, anytime, and from any device. And you also have structured courses, and you also join our free live classes and prepare with the top educators, the educators having much experience, more than 20 years of the experience, GATE and NET qualified, highly qualified, and having many awards, and having the online and offline both modalities experience. So they are at the top. And the Unacademy syllabus is organized in a comprehensive manner. Maths and science and English and Hindi, social science and computers are there for you. Means एक सब्सक्रिप्शन में बच्चे सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर हैं. दैट्स टू गुड. आप मल्टीपल एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं. सो गो विद देम and just download and install the Unacademy Learning app. And for getting top upcoming videos, updates, and talk to us, you need to download the Telegram app and type the link in the URL and click on the join button, right? And just this is about the pricing and बोले तो fee कितनी पड़ेगी. So there are 4 plans. 1 month plan आप मत लीजिएगा. That's not good for you because it's costly. 2500 rupees. Oh my god. एक महीने में आपको 2500 rupees देने पड़ेंगे. बच्चे आप किसी भी क्लास में होंगे ना 6 to 12 1 year तो आपने लगना ही लगना है. तो आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए जाइए. इसमें आपको पर मंथ 1250 या फिर 24 मंथ में 1040 देने पड़ेंगे. दैट इज cheaper than the 1 month plan. So go for 12 month 15,000 और 24 months 25,000. और आप जरूर यूज करें इस कोड को लाइव LIVEMP. This is V, this is not X. Live MP for getting 10% extra discount, right? एंड डिस्काउंट आपको 1 मंथ पे भी मिलेगा. तो कितना मिलेगा? 250 रुपीज. तो ये अच्छा है कि 12 मंथ्स वाले में आपको 1500 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, कि ये अच्छा है. या 24 मंथ वाले में 2500 मिलने वाला है, राइट? क्योंकि ये जो कोड है दिस इज ओनली वन टाइम एप्लीकेबल. Only one time applicable. So go with the 12 months or 24 months subscription, right? Okay, that's great. Now comes to the our today's topic of the learning C++ with Mohit Pandey on the Unacademy channel. C++ की क्लास चल रही है, right? This is your second lecture about C++, and in this session I am going to discuss these three things. One is variable. हम जानेंगे बच्चे वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, क्या उसका यूज है प्रोग्रामिंग में, कांस्टेंट क्या होते हैं और उसका क्या यूज होता है, और उसके साथ हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल, राइट? आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बता दिया गया है कि C++ कोड कहाँ लिखेंगे और उसको कैसे रन कराएंगे या फिर उसको कैसे कंपाइल कराएंगे, राइट? उसके लिए आईडी के लिए आपको एक लिंक भी भेजा जा चुका है. प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए
एंड फाउंड द लिंक। और उसमें जो एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आप वो प्रोग्राम खुद से बनाएंगे, राइट। कोई बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको रन करके मैं नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें रन करने जैसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं कोई छोटा कंसेप्ट बता रहा हूं तो वो तो एग्जाम्पल में आपको वही समझाऊंगा। कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा टॉपिक है, राइट, कोई थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको उसको प्रैक्टिकल बेस पे रन करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे रन कर रहा है, उसकी एक एक पॉइंट, एक एक बारीकियों को समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल्स। तो बच्चे सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, राइट। तो वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, हम नहीं बात कर रहे कि अभी सी प्लस प्लस की वेरिएबल्स कैसे होते हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बच्चे वेरिएबल एक जो हम मैथ्स में लिख देते हैं ना, लेट एक्स, राइट। सो दिस एक्स इज व्हाट? एक्स इज अ वेरिएबल। इस एक्स में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सी प्लस प्लस में कैसे बात करते हैं वेरिएबल में, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को हम कैसे ट्रीट करते हैं। वेरिएबल आर जस्ट अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, राइट। डेटा की वैल्यूज को रखने के लिए एक कंटेनर है, right? It's just like a container, right? And that container is सेटिंग इन द मेमोरी समवेयर। अगर आपकी ये मेमोरी है बच्चे, टोटल मेमोरी आपके कंप्यूटर की, इस मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बन गया है, राइट, जिसका आपने कोई नाम भी रखना होगा, राइट। सपोज इसका नाम आपने एक्स रख दिया, इस कंटेनर में आप क्या रख सकते हैं? डेटा रख सकते हैं, राइट। आप इस कंटेनर में क्या रख सकते हैं? डेटा रख सकते हैं, डेटा वैल्यूज रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, इवन कोई पिक्चर, कोई वीडियो, एनी काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। आप इतना दिमाग में रखिएगा, दिस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। एक कंटेनर एक पॉट है जिसमें हम डेटा रखते हैं, राइट। आपने पॉट देखे ना जिसमें सपोज मिल्क रखते हैं या स्नैक्स रखते हैं या फिर हम टी रखते हैं, दीज आर व्हाट? कंटेनर्स, राइट। ऐसा ही कोई कंटेनर हो, जस्ट एज्यूम दैट कोई कंटेनर हो, राइट, उसमें हम डेटा रख सकते हैं, अपने एबीसीडी संभाल के रखें, अपने 1 2 3 संभाल के रखें, दैट इज, अगर ऐसा कोई चीज है दैट इज योर वेरिएबल, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट? In C++, now I'm talking about variable in C++, there are different type of variables. Okay, अभी तो मैं ये कह रहा था आपसे कि वेरिएबल तो एक कंटेनर है, एंड दैट कंटेनर हैविंग व्हाट? डेटा वैल्यूज, राइट। डेटा वैल्यूज, इस कंटेनर के अंदर डेटा वैल्यूज भरा हुआ है, राइट। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि C++ में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस टाइम टाइप ऑफ वेरिएबल्स की, ठीक है। जब टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे तो जैसे वेरिएबल तो कंटेनर है, दैट्स ओके, लेकिन क्या एक कंटेनर हर एक चीज के लिए हम यूज करते हैं? नहीं करते ना। जैसे कि हम कोई कंटेनर रखते हैं अपनी वेजिटेबल्स को रखने के लिए, फ्रिज में होता है ना नीचे, वेजिटेबल्स रखने के लिए रखते हैं। कोई कंटेनर ऐसे होते हैं जिसमें हम राइस रखते हैं, राइट। कोई कंटेनर ऐसे होते हैं जिसमें हम लिक्विड चीजें रखते हैं। मींस डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स हैं, राइट। इन अ सेम वे डिफरेंट डिफरेंट डेटा वेरिएबल के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा वैल्यूज के लिए, जब डेटा की वैल्यू डिफरेंट है तो बेटा उसका वेरिएबल भी डिफरेंट होना चाहिए, वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए। और ऐसा होता भी है, सी प्लस प्लस में भी होता है, सी में भी होता है, राइट। तो ये अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल आपको मिला इंट, इसको समझिएगा, इंट, इसका मतलब क्या है पूरी बात समझिएगा। यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। इंट क्या है? इंट एक वेरिएबल है, वेरी गुड। इंट एक वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप है, राइट।
दूसरी बात क्या है, इस वेरिएबल, यहाँ पे लिख देता हूं, इंट इज अ वेरिएबल टाइप, ठीक है। और ये वेरिएबल टाइप क्या चीज है, मतलब वेरिएबल का मतलब कंटेनर टाइप, दिस इज व्हाट, कंटेनर टाइप। एक इंटीजर, एक क्या है, एक वेरिएबल टाइप है, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल की जगह मैंने कंटेनर लिख दिया, ये कंटेनर टाइप है, राइट। कंटेनर टाइप है, दैट्स मीन वो किस टाइप का डेटा रखने वाला है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, या तो वो इंटीजर डेटा होता है, या फिर कैरेक्टर डेटा होता है, या फिर डबल डेटा होता है। हम देखेंगे अभी इन डेटा टाइप्स के बारे में आगे कि ये होते क्या है, बट इस वक्त इस टाइम पे मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास अवेलेबल, तो बेटा वेरिएबल के टाइप भी बदल जाएंगे, जैसा डेटा टाइप वैसा ही वेरिएबल टाइप, राइट। जैसा आप मटेरियल रखना चाहते हैं कंटेनर में, वैसा कंटेनर आपको यूज करना पड़ेगा। तो सपोज आप इंटीजर यूज कर रहे हैं, आई एन टी, इंटीजर। इंटीजर आपका डेटा टाइप है, मतलब जो डेटा वैल्यूज है बच्चे वो इंटीजर हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अगर ऐसी वैल्यूज हैं तो उसके लिए आपको जो वेरिएबल का टाइप है वो आई एन टी टाइप रखना पड़ेगा। इंटीजर, सी प्लस प्लस में इंटीजर टाइप का वेरिएबल को आई एन टी से डिनोट किया जाता है बच्चे, राइट। अगर ए बी सी डी है, यहाँ नीचे दिखे थर्ड पॉइंट में, अगर आपकी डेटा वैल्यूज जो है ए बी सी डी है, तो आपको कैरेक्टर टाइप वेरिएबल रखना पड़ेगा, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो कंटेनर है आपका, सपोज एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज रख सकें, तब आपको वेरिएबल जो बनाना पड़ेगा दैट इज सी एच ए आर, राइट। सिमिलरली डबल, अगर पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, सपोज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग लिखा हुआ ना, इटसेल्फ इट इज अ स्ट्रिंग, लाइक ए बी सी, दिस इज द स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, एंड सिंबल्स। बूल, ऐसा भी कोई डेटा टाइप होता है बच्चे, ऐसा भी एक ऐसा डेटा टाइप होगा जिसको हम बोलते हैं बूल, जो कि हमको रखना होगा किसी कंटेनर में, तो उसका कंटेनर टाइप क्या होगा, बूल होगा। और बूल का मतलब यहाँ पे बच्चे क्या है, बूलियन है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात समझिएगा। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज द एक्चुअली डेटा टाइप, और जिस तरीके का डेटा टाइप होगा उसी तरीके का वेरिएबल टाइप होगा ना। अगर डेटा टाइप जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ये, आप समटाइम ऐसा होता है, ये बोलते हैं ये दूध का बर्तन है, राइट। तो जो उसमें कंटेन होने वाला है वो उसी का ही तो बर्तन हुआ, राइट। या हम ये कहते हैं ये सब्जी का कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर फॉर द वेजिटेबल्स, राइट। तो दैट्स मीन व्हाट, क्या, वेजिटेबल का कंटेनर मतलब इसमें वेजिटेबल रहेगी। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं बूल का कंटेनर मतलब बूल का वेरिएबल, उसमें क्या आएगा, बूल आएगा। और बूल स्टैंड फॉर बूलियन। सो जो डेटा वैल्यूज है दैट इज बूलियन वैल्यूज, दैट इज बुलियन वैल्यू। और बुलियन वैल्यूज का मतलब होता है वैल्यू इज या तो जीरो में होगी या फिर वन में होगी, मतलब इसके अलावा और कोई वैल्यू बूल में नहीं आ सकती, राइट। लाइक इंटीजर में 1 2 3 इन्फिनिटी तक, माइनस में भी इन्फिनिटी तक, कैरेक्टर में ए बी सी डी और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, डबल में 1 2 3 विद द डेसिमल वैल्यूज, स्ट्रिंग में एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी डी या और योर नेम। बूल में सिर्फ दो ही वैल्यू आ सकती हैं, 0 एंड 1। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम देखेंगे बूल का यूज कब करते हैं बच्चे, ये सी में नहीं होता है, ये सी प्लस प्लस में ही होता है। सो डोंट ट्राई दिस बूल टाइप इन योर सी विद द सी प्रोग्राम, दिस इज ओनली ऑफ द सी प्लस प्लस, बाकी सारे के साथ सी में होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम यहां पे देखते हैं जो हम बात आपको अभी तक आपको बताई गई है, थोड़ा सा उसको हम यहाँ टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ। आई एन टी, आई एन टी का मतलब इंटीजर है, शॉर्ट फॉर्म, राइट। स्टोर्स व्हाट, इंटीजर्स, जो मैंने अभी तक बताया। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए टेक्स्ट में, स्टोर्स इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, राइट, विदाउट डेसिमल होते हैं, सच एज -123 और +123, राइट। सो माइनस नंबर से पॉजिटिव नंबर्स तक विदाउट डेसिमल जितने भी नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को रखने के लिए, ऐसे नंबर्स को बोलते क्या है पहले बच्चे, इंटीजर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स को रखने के लिए जो आपको कंटेनर चाहिए या वेरिएबल टाइप चाहिए
दैट इज द इंटीजर टाइप, INT टाइप। मेरी बात समझ में आई? जब भी आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बिना डेसिमल का नंबर अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, देन यू नीड टू पुट द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, और यू नीड टू सेट द कंटेनर of container type, right, is the integer, right? Now second देखते हैं, ये फर्स्ट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा है डबल, DOUBLE डबल। what it stores floating point numbers with decimals। floating point का मतलब होता है डेसिमल वाले नंबर। अगर कोई नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, लेकिन अगर वो डेसिमल के साथ है तो आपको स्टोर कराना है कहीं, तो आपको जो कंटेनर टाइप रखना पड़ेगा या वेरिएबल टाइप रखना पड़ेगा, दैट शुड बी डबल, राइट। एंड थर्ड में आते हैं बच्चे, अगर यहाँ पे कैर लिखा हुआ है, कैर, कैर का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर लाइक स्मॉल ए हो चाहे कैपिटल ए हो, चाहे बी हो चाहे स्मॉल बी हो चाहे डी हो, मीन्स एनी कैरेक्टर यू वांट टू स्टोर, देन यू नीड टू व्हाट, कैर वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। ये एक अलग बात। जब भी आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है तो वेरिएबल टाइप CHAR लिखना पड़ेगा, और जब भी आप कैरेक्टर लिखेंगे बच्चे तो सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। whenever you write a character in your program, then you need to within this single quote, double quote नहीं, single quote के अंदर लिखना है, right? ये बात आप all time याद रखिएगा। Now next is what, there is another variable type or the container type which is string, stores text। जब आपको टेक्स्ट सच एज कोई मैसेज हेलो वर्ल्ड जैसा स्टोर करना होगा, देन यू नीड टू टेक स्ट्रिंग एज ए कंटेनर टाइप। और हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है? दिस इज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ, स्ट्रिंग इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए बच्चे, ये सारे कैरेक्टर्स तो हैं, HELLO0, दिस इज व्हाइट स्पेस WORLD, ऑल आर द कैरेक्टर एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। इसको और कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना होता है बच्चे? देखिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंगल कोट्स में कवर किए जाते हैं, और जबकि स्ट्रिंग आपकी डबल कोट्स में सराउंड की जाती है। आप देखिए यहाँ पे ये डबल कोट लगा हुआ है, एक ये डबल कोट। सो स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय द डबल कोट्स, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द बूल वन। दिस स्टोर्स व्हाट, स्टोर्स वैल्यू विद टू स्टेट्स, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर कोई ऐसी वैल्यू है या ऐसी कोई चीज है जिसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी या फिर 0 होगी, राइट, या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, मतलब इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं हो सकता। लाइक इन इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट इसमें क्या है 1 0 0 1। सो अगर इस तरीके की वैल्यू ही होगी किसी भी डेटा की, देन यू नीड टू बूल टाइप ऑफ कंटेनर। और बूल आया कहां से है बच्चे? बूलियन से आया है, बूल, राइट। So this is about the 5 type of your variable types, right, which I told you, and these are the data types actually, right? These are the data types, and you need to create a variable using this data type। अभी और आगे जो confusions हैं वो दूर होने वाले हैं कि एक्चुअल में होना क्या है, राइट? वेरिएबल क्या चीज है? These are not the variables, these are the actually type of the variables or the container of the। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैंने बताया वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसमें वैल्यूज रहती हैं, और ये जो इंट INT या फिर कैर या डबल या स्ट्रिंग बूल, ये क्या है? ये वेरिएबल्स नहीं है बच्चे, दीज आर दी टाइप ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। हम इससे डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल क्या है? जिसमें डेटा रहता है, और वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर है, ऐसे कह सकते हैं। और ये क्या है? दीज आर दी टाइप ऑफ द कंटेनर्स, राइट। सो ये मैंने आपको बताया। नाउ हाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल। डिक्लेयर अ वेरिएबल का मतलब बच्चे समझते हैं क्या? हाउ क्रिएट अ वेरिएबल। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल। नाउ अब आपको सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है जो अभी तक रही होगी, अब वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है।
कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कोई बच्चे मतलब होता है क्रिएट करने का, अपने प्रोग्राम में कैसे वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना x इक्वल टू 2, वैसे ही इस C++ में प्रोग्रामिंग में कैसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी बेसिक एंड ऑलवेज आपको ये यूज करना ही पड़ेगा जब भी आप कोड करेंगे। इसके बिना कोडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कोडिंग। नाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाने के लिए यू मस्ट स्पेसिफाई, अब आप देखिएगा, यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप। टाइप क्या, जो हमने देखे कंटेनर टाइप या वेरिएबल टाइप, लाइक इंटीजर है कि कैर है, राइट, डबल है या फिर अपना बूल है, क्या टाइप है ये बताना पड़ेगा। और एंड साथ में क्या बताना पड़ेगा, असाइन इट अ वैल्यू, और उसको एक वैल्यू दे दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आई। टू क्रिएट अ वैल्यू वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप, टाइप बताइए, एंड असाइन इट अ वैल्यू। आपके सामने यहां लिखा हुआ एक सिंटेक्स, दिस इज योर सिंटेक्स। यहां जहां पे ये टाइप लिखा हुआ है, एट दिस प्लेस आप लिख सकते हैं, या तो INT लिखेंगे या कैर लिखेंगे या डबल लिखेंगे या बूल लिखेंगे या स्ट्रिंग लिखेंगे, राइट। और यहां जहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल, यहां पे एक्चुअल में आप देंगे कोई भी वेरिएबल नेम, राइट। वेरिएबल इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल नेम। जैसे मैथ्स में देते हैं एक्स वाई सम, राइट, लिखते हैं ना लेट x इक्वल टू 2, इन द सेम मैनर, राइट। लेकिन जब हम मैथ्स में लिखते हैं x इक्वल टू 2 तो यहाँ इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि हमें देख के पता चल जाता है ये इंटीजर है कि फ्लोट है, बट कंप्यूटर को नहीं पता चलता, उसको इतनी समझ नहीं है बेचारे को, तो हमको उसको बताना पड़ता है दिस इज द टाइप, दिस इज द टाइप ऑफ द वैल्यू, राइट। तो ये हो गया टाइप, जो कंटेनर का टाइप हो गया। सेकेंड, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया। इक्वल्स टू हमने लगाया और यहां पे लिखा वैल्यू। ये वैल्यू जो लिखा हुआ है, दिस इज लिखा हुआ वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर ये इंटीजर है, अगर ये फ्लोट है तो 7.8 हो सकता है, अगर ये कैरेक्टर है तो ABCD हो सकता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज योर सिंपल सिंटेक्स ऑफ योर वेरिएबल फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। आप इस सिंटेक्स को बस ध्यान में रखिए, सिंटेक्स की आपको ज्यादा जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी व्हेन एवर यू स्टार्ट राइटिंग कोड। जब अभी हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखिए। सपोज आई वांट टू स्टोर इंटीजर वैल्यू इन सम वेरिएबल x, देन आई राइट INT, राइट। टाइप लिखा मैंने क्या, INT। वेरिएबल की जगह मैं लिखूंगा कोई भी वेरिएबल नेम, वेरिएबल भी लिख सकता हूं लेकिन मैं नाम लिखना चाहता हूं x, वेरिएबल की जगह मैंने लिखा x इक्वल्स टू, वैल्यू की जगह मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं 5। और बच्चे, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि टर्मिनेटर लगता है सेमीकोलन हर एक लाइन के बाद, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, वैसे C++ में सेमीकोलन, राइट। इस लाइन से क्या होने वाला है, व्हाट हैपन इफ दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, तब होगा क्या बच्चे, एक x नाम का वेरिएबल आपकी मेमोरी में बन जाएगा। मतलब x नाम का कंटेनर आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में x नाम का कंटेनर बन जाएगा। और उस कंटेनर का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कंटेनर, this container is going to be contain only integer values, और वो भी हमने असाइन कर रखी है 5। इस इक्वल टू का मतलब बच्चे होता है असाइन, इस इक्वल टू का मतलब होता है असाइन। असाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि x एक कंटेनर है, x एक कंटेनर है, उस कंटेनर को हमने कुछ दिया है, उसके अंदर रख दिया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि असाइन करना। इक्वल टू का मतलब बराबर मत समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, इफ इट इज अ कंटेनर एंड दिस इज द वैल्यू इज गोइंग इनसाइड द कंटेनर तो वो दोनों इक्वल हो गए। नो, दिस वैल्यू इज असाइनिंग टू दिस कंटेनर, दैट्स व्हाई इक्वल टू मींस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपके C++ में, ध्यान रखिएगा, इसको इक्वल टू बिल्कुल मत मानिएगा, राइट। सो और आपको दिख भी रहा है, इफ दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, तो बच्चे होगा क्या,
एक एक्स नाम का कंटेनर, बिल्कुल ऐसा ही कंटेनर आपकी मेमोरी में बनेगा, और उस कंटेनर में ये जो वैल्यू आपने 5 लिखी है तो 5 इसको असाइन कर दी गई, मतलब उसके अंदर रख दी गई। अगर आप यहाँ 15 लिख देते तो बच्चे 15 असाइन हो जाती। ठीक, सो सिमिलर मैनर में कैरेक्टर रखना हो तो यहाँ CHAR रखेंगे, आप नाम कोई भी रखिए, वैल्यू आपको कैरेक्टर रखनी पड़ेगी। सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर रखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग रखी जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वेयर टाइप इज वन ऑफ C++ टाइप्स, ये मैंने आपको बताया, वही लिखा है, सच एज इंट, एंड वेरिएबल इज द नेम ऑफ द वेरिएबल सच एज x और माई नेम। आप अपना नाम लिख लीजिए या यही लिख दीजिए माई नेम, कुछ भी लिख दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। उसके कुछ रूल्स होंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एट दिस प्लेस यू कैन राइट दिस x और माई नेम एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल, एंड टाइप की जगह इंट या कैरेक्टर, और वैल्यू की जगह द वैल्यू of the according to the type which is declaring here, right? Next is what, the equal sign is used, देखिए बच्चे, the equal sign is used to assign values, assign करने के लिए, equal नहीं शो कर रहा है वो, assign वैल्यू कर रहा है टू दी वेरिएबल। assign का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे इधर देखिए लेफ्ट में देखिए, अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 15, इसका मतलब इक्वल टू मत समझिएगा, इसका मतलब ये समझिएगा एक x कंटेनर है, और जब भी इक्वल टू देखें ये इमेज लाइएगा, एक x कंटेनर है और एक एरो है जो x की तरफ आ रहा है, कहां से, 15 से। दैट्स मीन व्हाट, दिस 15 इज गोइंग इनसाइड द x, और वी कैन से x is containing 15, right? This equal to means this, right? Okay, now come to the next slide. There is an example जो मैंने अभी आपको बताया कि how create a variable called mynum of type integer and assign it the value 15। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं सपोज एग्जाम्पल का, कि आपको you need to create a variable जिसका नाम होगा mynum। ठीक है, मैंने लिख लिया mynum, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं पहले वो सिंटेक्स जो मैंने पहले वाली स्लाइड पे लिखा था, क्या लिखा था, टाइप वेरिएबल नेम, और फिर लिखा था मैंने वैल्यूज और टर्मिनेटर, और ये लगाया इक्वल टू। ये आपका सिंटेक्स था। इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड माइनम, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है माइनम, मतलब इस जगह पे एट दिस प्लेस मैंने लिखा माइनम, राइट, ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर टाइप का मतलब टाइप की जगह क्या लिखना है, INT लिखना है। अगर ये पूरा इंटीजर लिखा होता तो भी आपको यहाँ INT ही लिखना है, इंटीजर नहीं लिखना है। इंटीजर तो हमें समझने के लिए है, एक्चुअल वर्ड इंटीजर है, बट C++ में उसको INT माना जाता है। एंड असाइन इट द वैल्यू 15, इस माइनम वेरिएबल को 50 असाइन कर दो, राइट, मतलब कि माइनम का जो वेरिएबल है उसको 15 असाइन कर दो, दिस एरो, राइट, दैट्स मीन इक्वल टू की जगह इक्वल टू आया, वैल्यू की जगह, दिस वैल्यू की जगह बच्चे 15 आया, एंड टर्मिनेटर क्लोज कर दिया, इंटीजर माई नेम इक्वल्स टू 15। यही बात यहाँ पे लिखी हुई, इंटीजर माई नेम इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसी वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है। बच्चे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फॉर आउटपुट देयर इज अ कमांड, देयर इज अ फंक्शन विच नोन एज सी आउट, सी आउट, राइट। उसके बाद में आप ये ऑपरेटर लगाएंगे, राइट। इस ऑपरेटर के बाद में आप या तो जो प्रीवियस वाला आपको लेक्चर था उसमें आपने क्या किया था, डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था, ठीक है। यहाँ और क्यों लिखा था डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट था, हार्ड टेक्स्ट था, ये कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए आपने डबल कोट्स में लिखा था। नाउ इफ आई राइट हेयर माई नम, इफ आई राइट माई नम एंड टर्मिनेटर, तो बच्चे होगा क्या, ये समझने की जरूरत है। होगा ये कि जो माई नम है ये प्रिंट नहीं होगा, स्क्रीन पे वेरिएबल नेम नहीं प्रिंट होगा। माई नम के अंदर जो वैल्यू है, मींस माई नम इज अ वेरिएबल एंड वेरिएबल इज व्हाट, कंटेनर। अब इस अगर यहां पे देखिए इधर लेफ्ट में, अगर ये आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी में एक कंटेनर है जिसका नाम है बच्चे माई नम, और उस माई नम में हमने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू असाइन रखी है,
15 असाइन कर रखी है, दैट्स फाइन। फिर मैंने ये लाइन लिखी, ये एक ही चीज है, काउट माई नम। अगर मैं ये लिखता हूं, कंपाइलर क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू माई नम की। माई नम एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 15, तो 15 प्रिंट होगा, राइट। ये मेरी बात समझ में आई। ये नहीं प्रिंट होगा स्क्रीन पे माई नम, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था, नहीं बेटे ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द वेरिएबल एंड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। बस यहाँ पे ये डबल कोट्स मत लगा दीजिएगा, अगर डबल कोट्स लगा देंगे बच्चे तो ये वेरिएबल नहीं रह जाएगा, ये तो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट किया था, राइट। So I suppose this is clear with you. Now come to the next slide. You can also declare a variable without assigning the value. ये एक नई बात है, दिस इज अ न्यू। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको वेरिएबल बनाने के लिए उसका टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसलिए बताया कि स्टार्टिंग में आप सीख रहे थे, अब आप वेरिएबल बनाना सीख गए हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर वेरिएबल बनाया है तो उसमें वैल्यू तो असाइन करेंगे, अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, अभी नहीं पता आपको क्या वैल्यू है, राइट। इन दैट केस क्या होगा, देखिए बच्चे, आपने लिखा int माई नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और क्या किया, इस माई नम में आपने एक वैल्यू रख दी, राइट, एक कोई वैल्यू रख दी, और उसको आपने क्या किया, प्रिंट करा लिया। अब आप देखिए पहले वाले प्रोग्राम में और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले हम इसी प्लेस पे वैल्यू को असाइन कर दे रहे थे, हमने यहां ना करके असाइन उसको नेक्स्ट लाइन में किया। मीन्स हम फर्स्ट लाइन जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे या वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, वहीं पे हम असाइन कर दे रहे थे वैल्यू, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, कोई जरूरत नहीं होती उसको वहां पे असाइन करने की। हम आगे, जरूरी नहीं है कि सेकंड लाइन पे हो, ये भी नहीं है, आगे जहां पे जरूरत पड़ेगी बच्चे वहां पे हम माई नम इक्वल टू 20 असाइन करेंगे, और नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि आपने यूज किया। अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर आपका कंपाइलर आपको वार्निंग दे सकता है कि दिस particular variable is unused, right? So अगर unused है then why you are carrying this? अगर कोई कंटेनर आपका खाली है तो उसको क्यों रखा हुआ है, छोड़िए उसको, हटाइए वहां से, right? So in this way you can also declare your variable, means आप simple, आपका जो सिंटेक्स है वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डेटा टाइप लिखिए, मैं टाइप की जगह बच्चा आप डेटा टाइप लिखना ज्यादा अच्छा चाहूंगा कि यहाँ डेटा टाइप लिखिए, डेटा टाइप के बाद आप यहाँ पे लिखिए वेरिएबल नेम, variable name. Now your syntax is different from previous one, उसमें और इसमें अंतर ये है कि इक्वल टू वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आपका चलने वाला है और वो भी चलने वाला है, दोनों चलने वाले हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नोट दैट इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, इट विल ओवरराइट द प्रीवियस वैल्यू। ये बात आप समझिएगा, ये क्या ये बात समझिएगा, बस आप यही इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज दिस इज योर मेमोरी, सपोज दिस इज योर मेमोरी एंड यू हैव अ वेरिएबल x, यू हैव अ वेरिएबल x, राइट। एंड ये x वेरिएबल आया कहां से, आपने ऐसे आया, यहां देखिए int x इक्वल्स टू 10, ये लिखा कोड, राइट। इस कोड से क्या होगा, x नाम का एक कंटेनर बनेगा और वो कंटेनर कैसा डेटा रखेगा, इंटीजर डेटा रखेगा, और वैल्यू क्या रख दी आपने, 10 रख दी, वेरी नाइस। नेक्स्ट लाइन में हो या आगे कभी भी ये पर्टिकुलर लाइन लिखते हैं आप, जरूरी नहीं नेक्स्ट लाइन में लिखें, पूरे प्रोग्राम में आगे कहीं पे भी जब ये लाइन रीड करी जाएगी तब क्या करेगा कंपाइलर, इस 10 को हटा के 15 लिख देगा, मींस प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देगा, ये ओवरराइट कर देगा, राइट। जो भी 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, उस पुरानी वैल्यू को हटा के नई वैल्यू निकाल देगा। ऐसा नहीं करेगा बच्चे कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक कंटेनर है तो कंटेनर में 10 पहले से था तो आपने 15 भी दबा के भर दिया ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा कंटेनर नहीं है कि इसमें आप जितना चाहें दबा के भर दें, नो। ये एक ऐसा रॉयल कंटेनर है कि जिस एक ही बार में एक ही वैल्यू रहता है, राइट। अगर आपने x इक्वल टू 10 लिखा हुआ था, दैट्स फाइन,
10 रह रहा था आराम से। आगे आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को x = 15 होगा, तो बच्चे 10 हट जाएगा, फिर 10 को जाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 हट गया, 15 आ गया, जो है उससे मतलब है, क्योंकि ये है भैया रॉयल, राइट। सो वही चीज लिखी हुई है। इंट माई नम इन्होंने बनाया 15, माई नम इक्वल टू 10 लिखा और लिखा काउट माई नम। सो आउटपुट इज 10, राइट। क्यों? 15 था आपका प्रीवियसली, बाद में आ गया 10। अच्छा, इसमें 15 और 10 है, मैंने 10 15 बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ये अलग एग्जांपल दिया है, ये अलग एग्जांपल दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इस केस में क्या होगा बच्चे, मेमोरी में 15 रहेगा पहले से, माई नम का वेरिएबल होगा, 15 था इसमें पहले से। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही, 15 हट गया और 10 बचा, फिर काउट माइनम किया तो 10 आया। इनका वेरिएबल नेम माइनम है, मेरा इधर वाला x था, राइट। जो ये रिटर्न में है, दोनों ही मेरे हैं। ये जो रिटर्न में है उसकी बात कर रहा हूं, जो अभी करंट बता रहा हूं, इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अदर डेटा टाइप। कुछ और अलग डेटा टाइप, मैंने आपको इंटीजर के एग्जांपल बताया, हाउ यू डिक्लेयर द इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल। नाउ आई वांट टू शो यू द डिफरेंट अदर डेटा टाइप्स। देखिए, इंटीजर माई नेम इक्वल्स टू 5 आपको पता है, होल नंबर विदाउट डेसिमल के लिए, डबल, माई फ्लोट नंबर, डेसिमल वाली वैल्यूज के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल वैल्यूज। यहाँ पे कैरेक्टर लिखिए, अगेन वेरिएबल नेम, इसमें भी सब में यही है। ये देखिए, ये डेटा टाइप हो गया, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया, ये आपकी वैल्यूज हो गई। असाइनमेंट एंड ऑपरेटर सब में लगने वाला है, इसमें भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। दिस इज योर डेटा टाइप, दिस इज योर वेरिएबल नेम, दिस इज योर वैल्यू, राइट। दिस इज टाइप, दिस इज वेरिएबल नेम, दिस इज वैल्यू, राइट। तो आप क्या है, सबसे पहले आपके पास टाइप होना चाहिए, और फिर वेरिएबल नेम होना चाहिए, और फिर आपकी डेटा की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। ये आपकी सीक्वेंस बनती है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, कैसे करते हैं अपने वेरिएबल को डिस्प्ले। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया था कि कैसे करते हैं, सी आउट लगा के करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टुगेदर विद operator to display variables to combine both text and a variable। मतलब कि हम टेक्स्ट और वेरिएबल को कंबाइन कर देंगे एंड सेपरेट देम विद द ऑपरेटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे सपोज मुझे ये लिखना है कि अगर टेक्स्ट भी लिखना है, जैसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि ये बताया था कि सी आउट लिख दिया, ऑपरेटर लगाया और लिख दिया मैंने माई नम, राइट। ऐसा लिखने से क्या होगा बच्चे, सिर्फ माई नम में जो वैल्यू है स्टोर, वो प्रिंट हो जाएगी, दैट्स फाइन। इससे पहले एक मैंने बताया था सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसी लाइन हो सकती है जिसमें टेक्स्ट तो होगा ही होगा और उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू भी आना चाहती हो। इस केस में हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैं लिखना चाहता हूं आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और ये आई एम बच्चे क्या है, ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है। ये ईयर ओल्ड क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल टेक्स्ट। और जो ये 35 है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल वैल्यू है, दिस इज वेरिएबल। क्योंकि ये तो प्रोग्राम है बच्चे, सॉफ्टवेयर है, मेरे लिए तो थोड़ी ना काम करेगा। हो सकता है जो भी इसको यूज करेगा, जो भी एज यहाँ पे आएगी, हो सकता है आप करें तो यहाँ आना चाहिए आई एम 13 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, जो भी वैल्यू होगी वो आनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना 35 आए। दैट्स इट। तो अब इसको हमें बनाना पड़ेगा वेरिएबल। अब जब ये वेरिएबल हो गया तो ये दो टेक्स्ट के बीच में ये वैल्यू कैसे आएगी, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहां पे एक इंटीजर है माई एज, दिस इज योर वेरिएबल नेम, अ कंटेनर, असाइनिंग वैल्यू, असाइन ऑपरेटर 35 टर्मिनेटर। तो माई एज में क्या आ गया बच्चे, 35 आ गया। सी आउट ऑपरेटर लगाया, सी आउट फंक्शन लगाया, देन ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर में आई एम लिख दिया, जैसे हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया था। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि आई एम के बाद मुझे एज ही प्रिंट करानी है। मतलब कि जब भी दो टेक्स्ट के बीच में या जब भी कुछ चेंजेस आएंगे, देन यू नीड टू
यूज दीज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर लगाया और हमने लिख दिया माई एज। अगर मुझे सिर्फ इतना ही लिखना होता आई एम 35, तो मैं यहीं पे टर्मिनेटर लगा देता, इसी प्लेस पे, मीन्स इस प्लेस पे टर्मिनेटर लगा देता। लेकिन अभी आगे और लिखना है तो फिर एक और मैंने एक बार और ऑपरेटर लगाया और फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा ईयर्स ओल्ड और कर दिया बंद और लगा दिया टर्मिनेटर। ये लाइन मैंने ऊपर ले आया, राइट। ये वाली बात समझ में आई। तो जब भी आपको अपने वेरिएबल की वैल्यूज दो टेक्स्ट के बीच में रखनी हो तो अपने वेरिएबल के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आप ये ऑपरेटर लगा दीजिएगा, काम आपका हो गया। दिस इज वेरी सिंपल। जब भी आपको अपने वेरिएबल की वैल्यू रनिंग टेक्स्ट के बीच में आगे पीछे जहां भी रखनी हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल नेम के लेफ्ट में, यानी कि यहां नीचे देखिए लेफ्ट में, अगर ये वेरिएबल नेम है तो लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आप ये ऑपरेटर लगा दीजिए तो वो प्रिजर्व हो जाएगा, उसकी वैल्यू स्पेस बन जाएगी कि उसकी वैल्यू यहां पे आनी है, अपना स्पेस वो प्रिजर्व कर लेगा। दैट्स फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ ऐड वेरिएबल्स टुगेदर। आई वांट टू ऐड वेरिएबल्स टुगेदर। व्हाट हैपन इन दिस, टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे भी बच्चे, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ यू ऐड टू नंबर्स, राइट। प्लस का साइन आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लस इज द सिंबल टू ऐड टू नंबर्स। आपको पता है अगर मैं 5 + 6 कर दूंगा तो रिजल्ट आने वाला है क्या, 11। दैट्स ट्रू, यू नो। सिमिलरली कंप्यूटर में भी हम ऐड करने के लिए प्लस का ही यूज करते हैं, कोई और नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। कोई भी लैंग्वेज हो हम प्लस का यूज करते हैं। कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को समझिएगा, ठीक है। उससे अच्छा होगा मैं इधर लिख रहा हूं, आप समझिएगा। इन दिस सेक्शन आई एम राइटिंग द सेम प्रोग्राम। suppose there is a value, suppose there is a value, फिर से देखिएगा, suppose there is a value 5, right, which is of the which is of the integer type, जिसको मैंने किसी वेरिएबल में रख दिया सपोज x, जिसका टाइप क्या है इंटीजर, वो मैंने असाइन कर दिया। सी प्लस प्लस लिख रहे हैं, टर्मिनेटर लगाना जरूरी है। ये एक लाइन बन गई, ठीक है। ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसको इस ढंग से लिख रहा हूँ। आप कोडिंग करते हुए प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, फटाफट आप इंट एक्स वाई लिखेंगे, राइट। सिमिलरली देयर इज अनदर वैल्यू 6 जो कि y नाम के कंटेनर में है, एंड द कंटेनर ऑफ y इज इंटीजर, एंड मैं उसको क्या करता हूँ, सी प्लस प्लस है क्योंकि टर्मिनेटर से बंद कर दिया, राइट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दो वैल्यूज को जोड़ना चाह रहे हैं। अब एक बात बताइए, यहां देखिएगा ऊपर, ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी मेमोरी है जिसमें एक x नाम का कंटेनर है जिसमें 5 वैल्यू रहती है, एक और कंटेनर है जिसका नाम y है जिसमें 6 वैल्यू रहती है। दोनों ही बच्चे इंटीजर टाइप हैं, दैट्स ओके फाइन। अब हमारा टास्क ये है, हम इन दो वैल्यूज को जोड़ना चाहते हैं। जोड़ेगा ठीक है कंप्यूटर, लेकिन जोड़ के कहीं रखेगा तो, अगर रखेगा नहीं तो फिर आप उसको आउटपुट नहीं ले पाएंगे। समझ रहे बात। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो कंप्यूटर जोड़ने के बाद उसको कहीं प्लेस करे जहां से आप उसको आउटपुट के लिए उठा पाए, राइट। तो सपोज ये एक कंटेनर बना दिया जहां पे इनका सम रहने वाला है, जिसका नाम मैंने सपोज एक्स वाई की जगह सम रख दिया। दिस इज द कंटेनर जहां क्या रहने वाला है, एक्स और वाई का समेशन रहने वाला है। जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वही सम हो जाएगा, राइट। तो हम यहां लिख देते हैं इंटीजर एक सम है, सम एक वेरिएबल नेम है जिसका टाइप इंटीजर है। दो इंटीजर वैल्यू जुड़ेंगी तो इंटीजर ही बनने वाला है, जिसको हम क्या असाइन कर दिया, हमने एक्स और एक्स प्लस वाई ऐड होके, एक्स एंड वाई ऐड होके जो भी वैल्यू बनेगी वो सम को असाइन हो। हम सम को 1 2 3 5 3 7 3 8 3 नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं भाई एक्स की देख लो, एक्स के घर में क्या रखा है। इन्होंने देख लिया कंप्यूटर ने, एक्स के घर में 5 वैल्यू है, ठीक है भाई अच्छी बात है। फिर कहले वाई का देख लो क्या रखा हुआ है, वाई में 6 वैल्यू है, देन दैट्स वेरी नाइस। अब 6 प्लस को कंप्यूटर ने ऐड किया, या मेमोरी में नहीं सीपीयू में, प्रोसेसर ऐड कर रहा है, अपने सीपीयू में एडिंग चल रही है, ठीक है। एक्स से वैल्यू उठ के जाती है बच्चे सीपीयू में 5, वाई से उठ के वैल्यू जाती है सीपीयू में 6, दोनों को एएलयू के थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराया गया, वैल्यू आई 11। अब ये जो वैल्यू 11 आई ये वापस यहाँ भेजी गई है सम में। नाउ एट दिस प्लेस ऑफ x प्लस वाई द वैल्यू इज 11, राइट। अगर यही कोड आप दोबारा रन कराएं और x और y की वैल्यू चेंज कर देंगे तो सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट।
अब आप देखिएगा इंटीजर सम हो गया। नाउ आई वांट टू प्रिंट, अब हम प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि सम नाम का कंटेनर बना हुआ है, उसमें एक्स और वाई दोनों का एडिशन रखना हुआ है। हम लिख देंगे काउट सी आउट ऑपरेटर सम इज, ये देखिएगा ये हमने क्या लगाया, डबल कोट्स और क्या फिर ऑपरेटर, ये सम लिखा है, दिस सम इज डिफरेंट विद दिस सम इज द वेरिएबल नेम, दिस सम इज द वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, और लगा दिया हमने टर्मिनेटर। सो दिस इज द प्रोग्राम, राइट। इन द सेम मैनर देयर इज एन आल्सो एग्जांपल, इंट x इक्वल्स टू 5 लिखा, इंट y इक्वल्स टू 6 लिखा, इंट सम इक्वल्स टू x प्लस y लिख दिया, एंड काउट सम करा दिया हमने, सी आउट करा दिया, राइट। जरूरी नहीं है बच्चे जहां पे ये इंट सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखा है वैसे ही करें, आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे इन अनदर वे। आप देखिएगा इंट सम और क्लोज, मतलब एक वेरिएबल बना, आगे आप लिख सकते हैं दूसरी लाइन पे सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं और उसी टाइम जब वैल्यू असाइन भी कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कराना। इसका मतलब ये वैल्यूज आगे चेंज होंगी। वेरिएबल का मतलब ये भी होता है वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वो कांस्टेंट नहीं होंगी। वेरिएबल का मीनिंग ये होता है एक्चुअल में, राइट। और इसमें भी वही है। सो एक चीज और अब देखिएगा, सी डिक्लेयर्स मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लाइन हमको चाहिए, अगर दो वेरिएबल चाहिए, इंटीजर x इंटीजर y, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में किया, जरूरी नहीं है आप ऐसा लिखें, आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते थे, int x कॉमा y। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स सेम टाइप के हैं वो एक लाइन में लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर y कैरेक्टर हो जाएगा तो यहाँ नहीं लिखना है, फिर आपको कैरेक्टर वाला नीचे लिखना है। सपोज कैरेक्टर इज c, ठीक है, यहाँ सी नहीं आ सकता, क्यों? उनका टाइप अगर सेम टाइप के जो होंगे वो एक लाइन में लिखे जा सकते हैं। आप चाहे तो इनकी वैल्यूज, जैसे यहाँ पे हमने बताया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 50, ऐसे वैल्यूज भी असाइन करनी है तो भी वो इनलाइन कर सकते हैं, नो इशू, राइट। अलग से उनको ऐड करा के कहीं स्टोर नहीं कराना है, डायरेक्ट आप यहीं पे स्टोर करा लीजिए, ये वैल्यू मेमोरी में नहीं जाएगी, सीधे आउटपुट पे चली जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो डिक्लेयर इस वाले में क्या होगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 50, राइट। इन तीनों का एडिशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 61 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई सम वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें शायद इस एडिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस एडिशन की दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा x प्लस वाई प्लस जेड करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, बार बार आप एडिशन कराएंगे, बल्कि अच्छा ये होगा कि एक वेरिएबल ले लेते सम नाम का, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड करा देते। अब जब भी आपको इस सम की जरूरत पड़ती तब तक आप इस सम वेरिएबल का यूज कर लेते, चाहे आप सम लिखें चाहे x प्लस वाई प्लस जेड लिखें, बात एक ही है, लेकिन इसमें ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है, ये बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंप्यूटर के लिए। सो आप कंप्यूटर की भी सहायता कर रहे हैं। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। कॉमा लगाना है बच्चे, सेमीकोलन नहीं लगाना है। जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉमा लगाते हुए बढ़ते जाइए, लास्ट में जब हो जाए तब ये टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन लगा दीजिए। नाउ कम टू दी C++ identifiers. What is the C++ identifiers? What is going in this? C++ आइडेंटिफायर क्या होता है, आइए देखते हैं कि क्या होता है आइडेंटिफायर। ऑल C++ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जो हमने अभी देखे, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे इंटीजर हो, मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम, राइट। इसका मतलब बच्चे सिर्फ इतना है कि अगर आपका कोई एक सिंगल प्रोग्राम है, जैसे आपने लिखा इंट x, आपने लिखा इंट x, राइट, और आपने लिख दिया दूसरी लाइन में कैर x, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? आप कह रहे हैं कि एक x नाम का वेरिएबल है जिसका इंटीजर टाइप है, आप दोबारा कह रहे हैं एक x नाम का ही वेरिएबल है जिसका कैरेक्टर टाइप है। आगे बच्चे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जब भी आप x लिखोगे, हाउ कैन आइडेंटिफाइड दिस कि दिस x इज कैरेक्टर वाला कि इंटीजर वाला, समझ रहे हैं बात। इसलिए जैसे स्कूल में दो बच्चों के सेम नेम हो जाते हैं, सिंगल नेम, तो मुश्किल हो जाती है कि इसकी बात कर रहे हैं या फिर इनकी बात कर रहे हैं,
ठीक है। इन अ सेम वे नाम आपका बच्चे यूनिक होना चाहिए, वेरिएबल का नेम यूनिक होना चाहिए, और जो वेरिएबल के नेम होते हैं यूनिक नेम, दैट इज नथिंग बट अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जिससे वो जाना जाए, राइट। तो सी प्लस प्लस मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नंबर। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। वेरी नाइस। ये एक तरीके की आईडी हो गई, ठीक है। आईडी क्या करती है, आपकी आइडेंटिटी बताती है। इन द सेम वे आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे उसका जो नाम रखेंगे यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब यह नहीं है कि दुनिया से यूनिक, नो, आपके प्रोग्राम में, विद इन योर प्रोग्राम शुड बी यूनिक, राइट। अपने जहां आप उसको नाम लिख रहे हैं ना, उस स्कोप में, वो जो प्रोग्राम की दुनिया है ब्रैकेट टू ब्रैकेट, अपने स्कोप में यूनिक होना चाहिए। बाकी इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो डज नॉट मैटर्स, राइट। इसकी जो दुनिया है दिस इज ब्रैकेट टू ब्रैकेट ही होती है, राइट। कुछ ऐसे होंगे जो ग्लोबली होंगे, उसको हम और डिटेल में देखेंगे, बट आपने प्रोग्राम में जब भी नाम रखना है तो यूनिक रखना है, आप इसको ध्यान रखिए, नथिंग एल्स। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स, एक्स एंड वाई, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में बताया, एक्स एंड वाई हो सकते हैं आइडेंटिफायर, कोई इशू नहीं कि बड़ा नाम हो। हम्म ऐसी कोई जरूरत नहीं है राजा मानिक चंद आपको नाम रखना है, सपोज इट्स नॉट लाइक दिस। यू जस्ट पुट एक्स एंड वाई एट द प्लेस ऑफ आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल नेम और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, या फिर थोड़ा ऐसा नाम रखिए कि वो कुछ डिस्क्रिप्शन देता हो, लाइक एज, सम, टोटल वॉल्यूम। इनमें इनमें अंतर क्या है, पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या है बेटा? अंतर ये है, एक्स और वाई में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है बात का। छोटा प्रोग्राम होगा, एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करानी, ऐड करानी, बात चल गई। लेकिन बड़ा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मैंने लिखा है, और आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप जब ये एक्स और वाई को पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये दो वैल्यूज तो हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है। अगर हम इसका नाम कुछ ऐसा रखें, जैसा इसका काम हो वैसा ही इसका नाम रख दें, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। इसलिए जैसे अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें ह्यूमंस की एज रखनी है, तो वेरिएबल आप लिखिए एज, ठीक है। अगर आपको मेंस की एज रखनी है तो आप लिखिए एज ऑफ मेन, एज ऑफ वुमेन, फीमेल, मेल और फीमेल, इस तरीके से, राइट। अगर आपको दो नंबर्स का सम करके रखना है तो सम लिखिए। कोई वॉल्यूम निकाल लें क्यूब का तो टोटल वॉल्यूम लिखिए, राइट। उसको खाली वी से मत छोड़ दीजिए। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, एरर नहीं आएगी, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम, जिसमें नाम वैसा हो जैसा उसका काम हो, उसका अपने काम के बारे में एक्सप्लेन करता हो, इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। आपकी समझ में भी आएगा बच्चे, आपका लिखा हुआ, खुद आपने कोड लिखा होगा, 10 दिन के बाद आपको ही समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप उसको वेरिएबल नेम मतलब आइडेंटिफायर हमेशा डिस्क्रिप्टिव दीजिए, तो उसको आगे मेंटेन करने में भी जरूरत आपको सही पड़ेगी। लाइक इन दिस मैनर, दिस इज गुड, दिस इज गुड प्रैक्टिस। INT इंटीजर नाम लिखा हुआ है, मिनट्स पर आवर, मिनट्स पर आवर कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं, दैट्स ओके। ये वाला जो स्टाइल है INT m इक्वल्स टू 60 चलेगा, ओके है, बट एरर नहीं आएगी, बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट m एक्चुअली इज। इस m का मतलब क्या है? देखिए m का मतलब क्या है, यहां क्या है, मिनट्स पर आवर 60, ठीक है, समझ में आया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम ही ऐसा है। यहाँ पे m फॉर मिनट हो सकता है क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता है, मुझे थोड़ी ना पता होगा। m इक्वल्स टू 60, ठीक है, मिनट इक्वल्स टू 60, बट m इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, सो आपको थोड़ा सा सही से नाम देना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द जनरल रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग नेम फॉर वेरिएबल्स। बेटा जो वेरिएबल्स के नाम हम रखते हैं, जो अभी तक हम रखते आए वेरिएबल के नाम, आपने सिंटेक्स में भी देखा, हमने वेरिएबल के नाम माई नेम कभी रख दिया, कभी n रख दिया, कभी x रख दिया। उन्हीं वेरिएबल के नेम को बेटा आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और जब भी हम अपने वेरिएबल का नामकरण करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज एरर आ जाएगी, ठीक है। ये जो C++ की जो दुनिया है, इनकी दुनिया में नाम रखने का कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो वो जो जनरल रूल्स हैं वो बेटा यहां लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको याद हो जाएंगे कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। जो आपका नेम है, नेम कैन कंटेन्स लेटर, लेटर हो सकते हैं, मींस ABCD, या फिर
कैपिटल ABCD कुछ भी हो सकता है, राइट, अप टू जेड। डिजिट्स हो सकती हैं, मतलब कि 0 1 2 3 अप टू 9 कुछ भी हो सकता है। एंड अंडरस्कोर हो सकता है बच्चे, अंडरस्कोर ये वैल्यू होती है, दिस इज अंडरस्कोर मींस A_B, जो बिल्कुल बॉटम में होता है, यहाँ डैश नहीं, डैश इज नॉट अंडरस्कोर, राइट। अगर अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको शिफ्ट के साथ डैश लगाएंगे तो अंडरस्कोर बन जाता है। ये तीन चीजें अलाउ हैं। जब भी आप अपना नाम लिखेंगे वेरिएबल का तो लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि तीनों चाहिए, तीनों में से एक होगा तो भी चलेगा, राइट। उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, या फिर तीनों हो सकते हैं, या फिर डिजिट्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, या लेटर और डिजिट्स हो सकते हैं, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं होगा, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, नेम्स मस्ट बिगिन विद, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप वेरिएबल नेम लिखेंगे आइडेंटिफायर C++ में तो वो बिगिन कहां से होगा, विद अ लेटर। हमेशा लेटर होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नाम लिखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए 1ABC, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इस प्लेस पे डिजिट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसको ABC1 लिख सकते हैं, दैट्स ओके, A1BC लिख सकते हैं, दैट्स ओके, या फिर अंडरस्कोर ABC लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ABC1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला जो प्लेस है मींस पहला जो लेटर होगा वो या तो कोई कैरेक्टर होगा, मतलब ABCD में से होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा, नंबर बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, जब भी आप वेरिएबल नेम बनाएं पहले स्पेस को छोड़ दीजिए, उस पे नंबर मत लिखिए, उसके बाद चाहे जितने नंबर लिखिए, कुछ भी लिखिए। पहले स्पेस पे क्या लिख सकते हैं, या तो लेटर लिख सकते हैं या अंडरस्कोर लिख सकते हैं। उसके बाद में चाहे लेटर लिखिए, चाहे डिजिट लिखिए, चाहे अंडरस्कोर लिखिए, कोई नहीं रोकेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चे क्या कहता है, नेम्स आर केस सेंसिटिव। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोज मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर हाई, दैट्स ओके, बन गया। मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया विद इन द सेम प्रोग्राम इंटीजर हाई, राइट, ये बन गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये हाई अलग वेरिएबल हो गया, ये अलग वेरिएबल हो गया, राइट। एक्सेप्टेबल का मतलब समझ रहे हैं, आपकी कंपाइलर एरर नहीं देगी, राइट, लेकिन कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। आप कभी ये वाला हाई लिख देंगे, कभी ये वाला हाई लिख देंगे, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये लिख दिया है तो एरर नहीं आएगी, लेकिन ये हाई और ये हाई इज टोटली डिफरेंट। दोनों हाई काम करेंगे, दोनों काम करेंगे मतलब क्या, वेरिएबल जो है आपका मेमोरी में देखिए, अगर ये मेमोरी है तो हाई नाम का एक वेरिएबल यहां बन जाएगा, यहां इंटीजर वैल्यू आएगी, और दूसरा HI एक और बन जाएगा, यहां पे भी इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब ये दोनों काम करेंगे। लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। सो नेम्स आर द केस सेंसिटिव, this my var are the different variables, right, they are the different। HTML में सेम हो जाते थे क्योंकि वो केस इंसेंसिटिव थी। ये आ गई फोर्थ, नेम्स कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे लिखते हैं ना, जैसे ये लिखा सच स्पेस एर, तो व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको व्हाइट स्पेस जैसा कुछ लगाना है उसी जगह बच्चे हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर बिल्कुल नीचे होता है तो वो व्हाइट स्पेस जैसा दिखता है, होता नहीं है, ऑफ कोर्स लाइन होती है, राइट। और स्पेशल कैरेक्टर लाइक नेम्स कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता नेम में, व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस एक्सक्लेमेशन, दिस हैश, दिस परसेंटेज, इस तरीके के जितने भी सिंबल आपको दिखते हैं ऊपर शिफ्ट के साथ, कोई भी नहीं आने वाले आपके नेम में। जब भी नामकरण करेंगे इन लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ रहेंगे तो लेटर और डिजिट और अंडरस्कोर, जिसमें नंबर्स को रिस्ट्रिक्शन है कि वो पहले प्लेस पे नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है, उनको प्रायोरिटी नहीं बिल्कुल है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, रिजर्व्ड वर्ड्स। जो रिजर्व्ड वर्ड हैं ऑलरेडी सी ने रिजर्व कर रखे, उनका भी आप नाम का यूज नहीं कर सकते, राइट। जो सी की दुनिया है, जिन्होंने सी की दुनिया बनाई है मिलके, उन लोगों के नाम आप नहीं रखेंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग। कैसे, जैसे कि C++ के कीवर्ड्स जो हैं, जो C++ में कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि INT एक कीवर्ड ही है बच्चे, लेकिन वो क्या शो करता है, INT इज अ कीवर्ड विच इज शोइंग डेटा टाइप।
int is a keyword which is showing data type, right? इसलिए अब आप इस int को एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नहीं यूज करेंगे। कैर हो, चाहे डबल हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स। गॉट इट? आपकी समझ में आई ये बात? आप इन इन कीवर्ड्स को अपने नाम में यूज नहीं करेंगे। सो अगर नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा बैक जाके दोबारा सुन लीजिएगा, बातें क्लियर हो जाएंगी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अब बच्चे बात कर रहे हैं हम सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स की, कि सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट क्या होता है। कॉन्स्टेंट आप जानते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा पाई, पाई के बारे में सुना है, वैल्यू होती 3.14। जो ऐसी वैल्यूज जो फिक्स्ड हैं, जिनको चेंज नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं जो वेरिएबल वैल्यूज नहीं है। वेरिएबल जो हमने पहले देखा उसमें क्या है, जब भी आप वेरिएबल में दूसरी वैल्यू रखते हैं वो ओवरराइट हो जाती है, पहले वाली चली जाती है, क्योंकि वो वेरी करेगा। कांस्टेंट का क्या मतलब है? वैल्यू इज फिक्स्ड। व्हेन यू डू नॉट वांट अदर्स और योरसेल्फ, चाहे आप खुद या कोई और, टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज, जो भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यू है उसको कोई बदल ना सके, तो उस वेरिएबल को ही हम कांस्टेंट बना सकते हैं। बात थोड़ी टेढ़ी है लेकिन बड़ी आसान, कि आप एक कांस्टेंट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे टू मेक योर वेरिएबल कांस्टेंट, फिक्स्ड कर देगा। दिस विल डिक्लेयर द वेरिएबल एज कांस्टेंट। वेरिएबल जो वैल्यूज है ना उनको कांस्टेंट बना देगा, फिर उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। विच मीन्स व्हाट? अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं, बट उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट? हाउ कैन यू, देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट नाम का ये कीवर्ड लगाया, राइट? इंट वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू, यहां तक तो सेम है। जैसे हम लिखते थे वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल को मुझे कांस्टेंट बनाना था तो उससे पहले मैंने एक CONST लिख दिया, तो ये कांस्टेंट बन गया। सपोज ये पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रोग्राम की, दूसरी लाइन में प्रोग्राम में आपने लिख दिया माई नेम इक्वल्स टू 10, ये बच्चे आपको एरर दे देगा। क्यों? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल माई नेम। ये तो बच्चे रीड ओनली है ना, रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब ये कांस्टेंट है, नॉट चेंजेबल। दिस इज योर अ कांस्टेंट, कांस्टेंट विच इज अनचेंजेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। कंप्यूटर को आया गुस्सा, दी उसने एरर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाज यूज व्हेन यू हैव वैल्यूज दैट आर अनलाइकली टू चेंज। ठीक है, आप इसका यूज कॉन्स्ट का कब करेंगे? कॉन्स्ट का यूज जब आपको लगता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लाइक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको कोई बदल ही नहीं सकता। लाइक कॉन्स्ट इंट आपने बनाया मिनट्स पर आवर इक्वल टू 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। अब ये बताइए, आप जब प्रोग्राम लिखेंगे क्या एक घंटे में मिनट 80 हो जाएंगे या 40 हो जाएंगे, या कोई और किसी और दुनिया अमेरिका में बैठ के लिखेंगे या इंडिया में लिखेंगे तो ये वैल्यू वेरी करेगी? कभी नहीं करेगी बच्चे। टाइम तो वेरी कर सकता है इंडिया अमेरिका में, लेकिन मिनट्स पर आवर तो 60 ही होते हैं, वही रहने वाले हैं। सो ये तो हम कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसको चेंज ही नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे, अगर ये कांस्टेंट नहीं लगाते तो आप चेंज कर लेते, लेकिन हमने फिक्स कर दिया कि नहीं, इसको कोई चेंज नहीं करेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन द सेम मैनर कांस्टेंट फ्लोट, फ्लोट इज द फ्लोट टाइप, जैसे डबल टाइप होता है वैसे ही फ्लोट होता है। फ्लोट स्टैंड फॉर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डेटा टाइप में जानेंगे क्या डिफरेंस है। ये भी पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए होता है। PI नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, दैट इज नथिंग बट अ पाई। पाई अगर आपने देखा उसका सिंबल ऐसा होता है। वैल्यू होती है आपकी 22/7, 22 डिवाइड बाई 7, जिसको 3.14 भी बोला जाता है, राइट? तो अब ये पाई की वैल्यू तो सालों से चलती आ रही है सेम, उसको तो कोई चेंज कर नहीं पाया, ना होने वाली है। सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, मैथ्स उसी पे टिकी हुई है। तो इट शुड बी you make it a constant, right? So this is about the constants, identifier, variables. Now second thing is, अभी तक जो हमने देखा था how you get output from the computer, C out, C में हम क्या C++ में क्या लगाते हैं? C out। और जो ऑपरेटर लगाते हैं, राइट, वो किसका लगाते हैं? इंसर्शन का, राइट? दिस इज योर इंसर्शन। काउट
इंसर्शन, और यहां पे हम लिखते हैं अपनी वैल्यू, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई माइनम या कोई भी वेरिएबल हो, हम कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हम चाह रहे हैं कि भाई आउटपुट तो बहुत हुआ, आई वॉन्ट अ वैल्यू विच इज एज ए इनपुट, विच a value which is inputted by the user, एक ऐसी वैल्यू जो आप इनपुट करें। जैसे हमने ऐड किया 5 और 6 को, 5 और 6 को ऐड किया, वहीं पे दे दिया। हम चाहते हैं बार बार रन करें, बार बार वैल्यू आए, तो कुछ अलग मजा आए, कुछ कैलकुलेटर जैसी बात बन जाए। उसके लिए बच्चे इनपुट कराने के लिए वी विल यूज CIN, लाइक सी आउट। जैसे सी आउट, नेम से भी पता चल रहा है, सी आउट, सी से आउटपुट हुआ, और ऐसे ही सी इन, सी से इनपुट हुआ, सी इन टू गेट यूजर इनपुट। ये याद करने के तरीके लिए बता रहा हूं। सिन सी इन इज predefined variable that reads data from the keyboard, ठीक है, कीबोर्ड से डेटा रीड करेगा विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये क्या है, एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब कि कीबोर्ड से लाएगा। अब आप या अपने दिमाग में रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो ऑपरेटर लगा हुआ है ना, बाहर की तरफ मींस राइट की तरफ जो ओपन है, दिस इज फॉर सी आउट, दिस इज फॉर सी आउट। बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। और सी इन के लिए हम क्या लगाते हैं, इसका उल्टा, राइट, बाहर से अंदर की तरफ ओपन, ठीक है, बाहर से, दिस इज आउटर वर्ड। अगर मैं इसको कहता हूं आउटर वर्ड, तो बाहर से अंदर की तरफ ओपन हो रहा है, दिस इज CN। और सी एट का मतलब अंदर से बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, मींस गोइंग फॉर टू आउटवर्ड्स, राइट। आउटवर्ड मतलब आउटपुट, राइट। सो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये लगा दीजिए सिन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड एक्स। इससे क्या होगा, आपका कंपाइलर आपकी स्क्रीन को रोके रहेगा और आपको मजबूर करेगा, यू नीड टू टाइप अ वैल्यू, सपोज आई टाइप 25 एंड प्रेस ऑन द एंटर, तब सेकेंड लाइन पे प्रोग्राम जाएगा, इफ इट इज द फर्स्ट लाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता देते हैं इसी बात का। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द यूजर कैन इनपुट अ नंबर। इस एग्जाम्पल में हम क्या बताने वाले हैं, एक यूजर एक नंबर को इनपुट करेगा विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स, मतलब कि एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप यूजर का इनपुट अ नंबर, इसलिए मैंने इंटीजर ले लिया, विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स, देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। एक्स तो हमने क्या करना पड़ेगा, इंट एक्स लिखा, ठीक है, इंट। यहां पे देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं, इनको सही से लिख के आपको बताता हूं, समझिएगा इस प्रोग्राम को। मैंने लिखा, क्या करना है, एक जो करना है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूं। ये आपकी अगर स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे ऐसा लिख के आए कुछ, टाइप अ नंबर, प्लीज टाइप अ नंबर, ठीक है। प्रोग्राम यहीं पे रुका रहेगा। व्हेन यू राइट अ नंबर, सपोज 25 एंड प्रेस द एंटर, तब यहां पे लिख के आ जाए योर नंबर इज 25, ऐसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लिया बच्चे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम रख दिया x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x, ठीक है। और x को असाइन कर दी हमने वैल्यू, कुछ असाइन करेंगे, हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है द यूजर कैन इनपुट अ वैल्यू, तो हम इसको असाइन कुछ नहीं कर रहे, जस्ट टर्मिनेटर लगाया। ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन पे आए, वहां क्या लिखा, ये मैसेज आना चाहिए टाइप अ नंबर, इसके लिए हम सी आउट का यूज करेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, राइट, एंड व्हाट, टाइप अ नंबर, टाइप अ नंबर, और इसको क्लोज और कर देंगे यहाँ पे अपना टर्मिनेटर, राइट। ऐसा लिखने से, सी आउट लिखने से वैल्यू इनपुट नहीं होगी। दिस इज द ओनली मैसेज विच इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ मैसेज है, डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा लिखने से इनपुट नहीं कराएगा कंप्यूटर, सिर्फ मैसेज है। इनपुट किससे कराएगा, जो लाइन अब मैं लिखने वाला हूं, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट, और फिर लिखेंगे हम क्या, एक्स, और टर्मिनेटर लगा देंगे। x क्यों लिखा, क्योंकि x में वैल्यू रखनी है, और x क्या है, यहां पहली लाइन में हमने बता दिया था कि x एक
वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। जब ऐसा आप लिखेंगे, जब ये वाली पर्टिकुलर लाइन रीड कर रही होगी कंप्यूटर, तब यहाँ पे आप टाइप कर पाएंगे 25 और फिर इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ नीचे देखिए, जैसे ही इंटर करेंगे जो x नाम का वेरिएबल बना था आपकी मेमोरी में, जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। ये x तो पहले ही बन गया था, पहली लाइन से इसने बना दिया था कंटेनर, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम, हमें प्रिंट कराना है ये योर नंबर इज, जो भी नंबर प्रिंट इनपुट किया गया हो, तो जो भी नंबर इनपुट किया गया हो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी आउट एंड ऑपरेटर विद लिखेंगे योर नंबर इज डबल कोट्स बन, फिर दोबारा ऑपरेटर लगाएंगे। ये हो गया हमारा पहले टेक्स्ट। उसके बाद में वैल्यू प्रिंट करानी है, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, जो वैल्यू एक्स में हो वो प्रिंट करा दो और टर्मिनेटर लगा देंगे, राइट। सो दिस इज द वे how to do this, how you inputting the value and output that. This is the code int x count type number, then sin x and count see out your number is x, right. In the same manner मैंने आपको लिख के बताया। लिख के बताने का बच्चे फायदा ये होता है कि जब हम लिखते हैं तो जो लिखने की स्पीड है वो आपकी स्पीड से मैच करती है, तो आपको समझ में आता है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑन दिस ऑल्सो। जबकि यहाँ पे लिखा भी होता है तब भी मैं लिखता हूँ उसको, उसका रीजन यही है जिससे आपको समझने में आसानी हो, राइट। सो देयर इज सम नोट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो है सी आउट बोला जाता है, ये आपका सी इन बोला जाता है, ये एक्चुअली सी इन बोला जाता है, ये सी आउट बोला जाता है। इसमें जो ऑपरेटर है वो इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये आपका जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सिंपल कैलकुलेटर क्या करेगा, इन दिस एग्जांपल द यूजर मस्ट इनपुट टू नंबर्स, दो वैल्यूज x और y, कोई भी वैल्यू होंगी 25 35 69, कोई भी वैल्यू होंगी, कोई भी वैल्यू, और देन वी प्रिंट द सम बाय द कैलकुलेटिंग द टू नंबर्स, राइट। देन वी प्रिंट द सम, जो भी सम होगा मींस दो, एक ऐसा कैलकुलेटर इसमें सारी फंक्शनलिटीज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं है, सिर्फ एडिशन करेगा। देखते हैं कैसे, क्या करने वाला है, इंट एक्स वाई। इंट एक्स वाई लिखने से क्या होगा बच्चे, मेमोरी में अपनी बन गई एक x नाम की कंटेनर, एक y नाम की कंटेनर, एक नेक्स्ट लाइन पे आए एक सम नाम की कंटेनर, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ, काउट टाइप और नंबर। ये तो काम हो रहा है मेमोरी में, अब काम शुरू हुआ आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सी आउट में लिख के आया टाइप अ नंबर, टाइप अ नंबर डॉट डॉट। अभी आप टाइप नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे गया सी इन, तो अब हमने लिखा 25। 25 किस में गया बच्चे, एक्स में गया, एक्स में लिख दिया हमने 25, एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी सी आउट पे जाके, टाइप एनदर नंबर, राइट। रुका हुआ है क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे गया सी इन वाई। सपोज मैंने लिखा 10 और एंटर किया, तो क्या होगा, वाई में चली गई वैल्यू 10। फिर नेक्स्ट लाइन सम एक्स प्लस वाई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन का जो रिजल्टेंट होगा वो ना मॉनिटर पे ना यहाँ दिखने वाला है, कहाँ दिखने वाला है, जो x और y की वैल्यू है वो आपके CPU में, x और y की वैल्यू CPU में बुलाई जाएगी मेमोरी से, राइट। और इनको ऐड किया जाएगा, राइट। और ऐड करके जो भी आंसर आएगा, मींस 25 और 10 को ऐड किया तो कितना होता है बच्चे, 35। 35 वापस सम में रख दिया जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे ये हो गया, एंटर हो गया। नेक्स्ट लाइन आई सी आउट, सी आउट मतलब कुछ आउटपुट होने वाला है, स्क्रीन पे सम इज लिख के आएगा, सम इज, राइट। और सम कितना, सम की वैल्यू कितनी है, 35। नाउ प्रोग्राम इज ओवर। तो दिस इज द, अब इसको आप दोबारा रन करोगे ना तो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू रखना, ये वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी। नेक्स्ट के लिए जितनी बार जब जब ये रन होता रहेगा तब तब ये अलग अलग और अलग अलग एक्स की वैल्यूज लेके अलग अलग आंसर देगा। तो एक ऐसा कैलकुलेटर है जो सिर्फ एडिशन का काम करता है। आगे आने वाले टाइम में बच्चे ऐसा कैलकुलेटर बना लेंगे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या और भी साइंटिफिक ऑपरेटर्स का यूज करके हम कुछ कर सके, राइट। सो दिस इज अबाउट दी सिंपल कैलकुलेटर। आज हमने जो जाना, हम जस्ट आई वांट टू कंक्लूड दिस, व्हाट इज द समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर। I discussed about the variables and type of variables. Variable is nothing but a container, ठीक है। टाइप ऑफ वेरिएबल हमने देखा,
हमने देखा वेरिएबल के नाम कैसे रखते हैं, हमने वेरिएबल का सिंटेक्स देखा, वेरिएबल का नाम के हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, राइट। हमने देखा कि कांस्टेंट क्या चीज होती है, राइट। हमने देखा एक सी इनपुट इनपुट कराने का वे देखा, आउटपुट कराने का वे देखा, इनपुट और आउटपुट कैसे होता है सी प्लस प्लस में, ये भी देखा, राइट। आगे आने वाले लेक्चर में बच्चे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अभी हमने वेरिएबल्स देख लिए हैं, राइट, इनपुट आउटपुट देख लिया है, आइडेंटिफायर देख लिए हैं। अब हम आगे आने वाले में डेटा टाइप्स देखेंगे, और क्या देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो ऑपरेटर देखा वो सिर्फ प्लस देखा, सिर्फ एडिशन का काम कर रहा है। अभी हमें और आगे के भी ऑपरेटर्स देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और हम अपनी लर्निंग को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि एक दिन आप बहुत बड़े कोडर या डेवलपर बन सकें। ऐसी ही मेरी विश है, और आपकी विश पूरी हो। तब तक के लिए keep commenting on the YouTube, right, and like the video, subscribe it, right, and hit the bell icon for the latest notification, and join the Telegram group for latest updates on the upcoming videos, right. And let's crack CBSE with Unacademy, and join, subscribe with by using this code live mp, right. This is written over there also, live mp. Of course you need to subscribe it, बहुत जरूरी है। स्पेशल क्लासेस आपके लिए, आपको बहुत अच्छी लर्निंग में फ़ायदा मिलेगा, और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपकी लाइफ के लिए। तो यू मस्ट गो फॉर द सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब करने जाएं तो लाइव एमपी कोड का यूज़ कर लिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और have a nice night, right. Maybe sometime you are watching this video, sometime you are not watching this live, that's why I'm saying have a nice day or a good night, right. So tab tak ke liye bye bye, and take care, enjoy the life, and happy learning. Thank you.